This is Christmas season. ये क्रिसमस का समय है And I know in Christmas season we all expect a message related to the birth of Jesus. और हम जानते हैं कि क्रिसमस के समय में हम परमेश्वर के जन्म से जुड़े हुए संदेशों को सुनना चाहते हैं And so today I want to share with you about birthing the impossible. और मैं आज सुबह आपके साथ बांटना चाहता हूं कि कैसे एक असंभव का जन्म है And when you look at the Christmas story, इसलिए जब हम क्रिसमस की कहानी सुनते हैं from a human perspective, it is an impossible story. जब हम क्रिसमस की कहानी सुनते हैं तो मनुष्य के मानवीय रूप से ये असंभव एक बात है But to God, it was a possible story. लेकिन परमेश्वर के लिए ये संभव कहानी From थी a human perspective, it was a supernatural act of मनुष्य God. के दृष्टिकोण में ये परमेश्वर की ओर से एक दैवीय कार्य था But from God's perspective, it was not supernatural. लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से वो एक दैवीय कार्य नहीं था For God's eyes, for God's perspective, it was just a natural thing for God to do. परमेश्वर के दृष्टिकोण से वो एक प्राकृतिक हो जाने वाला एक ऐसा कार्य था Hallelujah. Because in God's dictionary, there is no supernatural. क्योंकि परमेश्वर के शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है For God, everything is natural. परमेश्वर के लिए हर चीजें प्राकृतिक हैं For us, for you and me, आपके और मेरे लिए the many things that God do is supernatural. परमेश्वर जो कार्य हमारे लिए करता है वो दैवीय कार्य होते हैं That's because we are not God. क्योंकि हम मनुष्य हैं परमेश्वर नहीं है इसलिए And God is God. परमेश्वर परमेश्वर है Hallelujah. It humbles us, isn't it? ये हमको बहुत ही दीन बनाती है It humbles us to know that there is someone beyond us, somebody who is greater than us. और ये सोचकर कि हमसे ऊंचा कोई है हमसे महान कोई है And so when you are faced with the impossible situations in your life, इसलिए जब आप अपने जीवन में कुछ असंभव का सामना करते हैं know that for God there is no ये impossibility. जान लें कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभवता नहीं है For God everything is possible. परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है Now sometimes we dream about many things. कई बार हम कई बातों के लिए सपने जोड़ते हैं And some of our dreams we feel like they are impossible for us. और हम सोचते हैं वो सपने हमारे लिए असंभव हैं But when our dreams are in line with God's dreams, लेकिन जब हमारे सपने परमेश्वर के साथ जुड़ जाते when हैं our thoughts and our vision and our heart is in sync with God's purposes, और जब हमारे सपने हमारा दर्शन हमारा दिल जो है परमेश्वर के दर्शन के साथ जुड़ जाता है the impossible become possible. तब असंभव बातें संभव हो जाती हैं Hallelujah. Hallelujah. God can take ordinary people and ordinary situations and make it extraordinary. परमेश्वर साधारण चीजों को लेकर असामान्य बना सकता है So turn with me to the Gospel of Luke, इसलिए लूका रचित सुसमाचार की ओर अपने बाइबलों को पलट chapter लें 1, और उसका पहला अध्याय verse 5 onwards. और उसके 5वें पद से आगे And when you go home, read the entire chapter of Luke Gospel, chapter 1. और जब आप घर जाएं तो उसके आगे के पद्यांश पदों को पढ़ सकते हैं But from verse 5 to verse 38, लेकिन आप 5वें पद से अगर 38वें पद तक आते we हैं have two parallel passages. हम देखते हैं वहां दो कहानियां हैं जो साथ साथ चल रही हैं One with a couple who are getting on in their age. और एक वहां पर ऐसा दंपत्ति है जो अपनी उम्र में बढ़ता चला जा रहा है As our Bible portion says, alongside two young people not old enough to drive the car according to today's license requirements. और ये ऐसा है जैसे इस समय में कोई जवान दंपत्ति है और वो गाड़ी नहीं चला सकता क्योंकि उनको लाइसेंस जो है अभी मिला नहीं है So one couple that is old, एक दंपत्ति है जो बहुत बुजुर्ग हो गया another couple that is just young and just growing up. और अभी एक ऐसा दंपत्ति जो जवान है बस थोड़ा बढ़ ही रहा है But both accounts have the angels interacting with both the couples. लेकिन दोनों जगहों में हम पाते हैं कि स्वर्गदूत दोनों से मुलाकात कर रहा है The angel Gabriel and God's intervention in the lives of these two couples in a very personal और हम way. देख रहे हैं कि जो जब्राइल स्वर्गदूत था वो दोनों से मुलाकात कर रहा है We see that as God encountered them where they are in their impossible और हम situations, देख रहे हैं कि दोनों दंपत्ति जो है वो बड़े असंभव परिस्थिति में है और परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा उनसे मुलाकात कर रहा है the impossible become possible for them. और तब
उनके लिए असंभव संभव बन जाता है The unexpected become the expected thing. और जो अपेक्षा जिसकी नहीं कर सकते थे वो अपेक्षित बन जाता है So in these two stories that we're going to unpack this morning, और आज सुबह जब हम इन दो कहानियों के बारे में पढ़ते हैं we see how God giving birth to the impossible. हम ये देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर कैसे असंभव को जन्म देता है So the first story is Zechariah and Elizabeth. इसलिए सबसे पहली कहानी जकरिया और एलिशबा के बारे में है First of all, we see Gabriel, the angel, shows up before this couple in the temple. सबसे पहले हम देखते हैं कि मंदिर आराधनालय में जो है यहाँ जब्राइल स्वर्गदूत आ जाता है It is so important that God's miracles and encounters often happens in the temple. ये कई बार ऐसा जरूरी होता है कि परमेश्वर की मुलाकात या ऐसा मिलना जो है वो परमेश्वर के भवन में होता है God encounters happens when we are in the presence of God. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तब परमेश्वर हमसे मुलाकात करता है If you stay at home and expect God to do things, it does not necessarily happen all the time. अगर आप अपने घर में रुकेंगे और आप चाहेंगे परमेश्वर आपसे वहां कार्य करे तो हमेशा ऐसा नहीं होता है Throughout the scripture, you see things happening in people's lives because they were in the presence of God. आप बाइबल में ज्यादातर समयों में ये पढ़ेंगे कि लोगों के जीवन में कार्य तब हुआ क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति या भवन में थे So the presence of God is where people of God gathers together to worship Him. इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति वो जगह होती है जहां लोग इकट्ठे होते हैं उसकी आराधना करने के लिए And so here we see God visiting Zechariah. इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर जकरिया से मिल रहा है And for the Jewish people, the temple was a very significant place. और यहूदियों के लिए आराधनालय बड़ा ही एक बड़ी जगह महत्वपूर्ण जगह होती The थी temple was a place where they practiced their life together as a community. और वो एक ऐसी जगह होती थी जहां सामुदायिक रूप से वो लोग अपने जो कार्य होते थे आराधना के वहां करा करते थे For the Jewish people, everything revolved around the temple and the house of God. यहूदियों के लिए आराधनालय और परमेश्वर के घर के चारों ओर ही उनकी जिंदगी होती थी And if you look at Luke, how he introduces these people to us, और जब हम लूका में पढ़ते हैं कि वो कैसे इन लोगों का हमसे परिचय देता है it says in the time of Herod the king Judea, there was a priest named Zechariah. यहाँ ऐसा लिखा है यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था Who he belonged to the priestly division of Abijah. और वो हारून के वंश से जुड़ा हुआ था His wife Elizabeth was also a descendant of Aaron. और उसकी पत्नी जो है वो हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशबा था And then it says in verse 6, और फिर वो छठे पद में ऐसा लिखा है both of them were righteous in the sight of God, दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे observing all the Lord's commands and decrees और blamelessly. परमेश्वर की सारी आज्ञाओं और विधियों को निर्दोष चला करते थे So this people, this couple, this old couple were faithful people of God. और ये जो बुजुर्ग दंपति थे वो परमेश्वर के प्रति बहुत विश्वासियों के थे Day in and day out, they were worshiping God and they were devoted to the things of God and they were righteous in the eyes of God. हर दिन हर समय वो परमेश्वर के कार्यों में लगे रहते थे परमेश्वर के लिए बहुत समर्पित थे But there was a problem. लेकिन एक समस्या थी They had no children. उनके पास बच्चे नहीं It थे says in verse 7, सातवें पद में लिखा है they were childless because Elizabeth was not able to conceive and they both were very old. और वहां ऐसा लिखा है उनकी कोई भी संतान ना थी क्योंकि इलिशबा बांझ थी और वो दोनों बुजुर्ग थे How is that possible? ये कैसे संभव है Can good people have difficulties and impossible situations in their life? क्या अच्छे लोगों के साथ कठिनाइयां या असंभव बातें हो सकती हैं Maybe you are saying, Pastor, I've been coming to church for the last 5 years. शायद आप मुझसे बोलेंगे पासवान मैं तो 5 साल से कलीसिया I've आया been हूं giving my tithes and offerings. मैं तो अपना दशवांश और अपना दान भी देता हूं I've been witnessing my faith to my neighbors. मैं अपने विश्वास के बारे में साक्षी लोगों को देता हूं Let me tell you, मैं आपको बताता हूं God sees you as righteous. परमेश्वर आपको धर्मी होकर देखता And है He is keeping a record of the things that you are doing for Him. और परमेश्वर उन सब चीजों को लिख रहा
है जो आप उसकी महिमा के लिए करते हैं। Let me tell you, for the Jewish people, मैं बताता हूँ आपको, यहूदियों के लिए the status of the couple depended on their family. और यहूदियों के लिए जो उनका स्तर होता था परिवार का, वो बच्चों के अनुसार जाना जाता था। A barren couple in the Eastern culture of that day was considered cursed by God. पूर्वी जो संस्कृति थी, वहां पर अगर किसी के बच्चे नहीं होते थे तो वो परमेश्वर के द्वारा श्रापित जाने जाते थे। But लेकिन they were considered righteous by God. परमेश्वर के द्वारा वो धर्मी जाने They गए, were blameless. वो निर्दोष पाए They गए, were faithful to वो God. परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य Yes, थे। they had an impossible situation. हाँ, सच में उनके लिए एक असंभव बात तो But थी। let me encourage you today लेकिन आज सुबह मैं आपको उत्साहित करता हूँ, that God is never far from you. परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। He is near to the brokenhearted. परमेश्वर जो टूटे मन वाले हैं उनके निकट रहता He है। will never let the righteous be ashamed for वो long. कभी भी धर्मी को लज्जित होने नहीं देगा The गलत Lord के will लिए। prepare a table before your enemies. परमेश्वर आपके सामने, आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा। Zechariah was a priest. जकरिया जो था वो एक याजक था। They both were वो blameless. परमेश्वर के सामने निर्दोष थे। But God decided to honor this couple and call them as righteous. लेकिन परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि वो उनको आदर देगा और उनको धर्मी कहलाएगा। They did not have a social status in the society, शायद समाज में उनका सामाजिक स्तर नहीं था, but there was a spiritual status. लेकिन एक आत्मिक स्तर जो परमेश्वर ने उन्हें दिया What था। is more important is our spiritual status. क्या हमारे लिए जरूरी है वो ये है कि हमारा एक धार्मिक स्टैंडर्ड स्तर होना चाहिए। Many times we consider or we think that our spiritual status is based on our social status. कई बार हम ऐसे सोचते हैं हमारा आत्मिक स्तर जो है वो हमारी सामाजिक स्तर से जुड़ा होता है। But when Zechariah was told by the angel लेकिन जब जकरिया को स्वर्गदूत ने आकर कहा that his elderly barren wife was going to have a son, कि उसकी जो बूढ़ी जो उसकी पत्नी थी उसके पास एक बेटा होगा, he requested the angels to give him a sign. उसने स्वर्गदूतों से विनती करी कि तू उसको एक चिन्ह दे। Requests for signs never go over very well in the Gospel of Luke. लूका के सुसमाचार में जो चिन्ह की बातें होती हैं वो बहुत अच्छे से नहीं जाती। Zechariah had his doubts because he had gone through this experience for many years. जकरिया को थोड़ा शक था क्योंकि इतने सालों में उन्होंने अनुभव किया था कि असंभव था ये बात। Because for him the situation was impossible. क्योंकि उसके लिए उसकी परिस्थिति तो असंभव थी। But Zechariah seems to be not really understanding the way how God works. लेकिन जकरिया समझ नहीं पा रहा था कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। If you look at the verse 9, अगर आप 9वें पद को देखेंगे, he says he was chosen by Lord according to the custom of the priesthood to go into the temple of the Lord and burn incense. वहाँ ऐसा लिखा है, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि वो प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। And his job was one of responsibility in the temple. और उसका कार्य ये था कि वो जाकर धूप जलाए। But Elizabeth on the other side, लेकिन इलिशिबा दूसरे हाथ में, even though Zechariah was a priest and doing the things of God, जबकि जकरिया जो था वो परमेश्वर के मंदिर में कार्य करता था, Elizabeth had a deeper understanding of how God works. लेकिन जो इलिशिबा थी उसके अंदर एक गहरी एक समझ थी कि परमेश्वर कार्य कैसे करता The है। response from Elizabeth to God's intervention of the impossible situation was totally opposite to how Zechariah और responded. जिस तरह से इलिशिबा समझ रही थी परमेश्वर के इस कार्य के लिए जो परमेश्वर कर सकता है, वो बिल्कुल अलग था जो जकरिया के साथ था। If you look at verse 25, अगर आप 25वें पद को देखेंगे, it says, the Lord has done this for me, she और says. यहाँ ऐसा लिखा है, मनुष्य ये परमेश्वर ने मेरे लिए किया है। And it says, she said, in these days he has shown his favor and taken away my disgrace among the people. और वहाँ वो ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर से जो है जो
अनादर था वो हटा दिया है। So it's my dear friends, इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, sometimes we may be engaged in religious कई activities, बार हम बहुत ही धार्मिक कार्यों में लगे रहे or होंगे we may be doing religious duties, और हम जो धर्म के काम होते हैं शायद उनको कार्यों को बहुत अच्छे से करते but होंगे, that does not mean we can fully comprehend what God is all about. लेकिन हम ये उसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर जो कर रहा है उसको पूर्ण रीति से समझते हैं। Like Elizabeth, ये इलीशिबा के समान we need to have a relationship with God, हमारा परमेश्वर के साथ संबंध होना है, a revelation about God परमेश्वर का प्रकाशन हमको मिलना है that is deeper than our theological understanding, जो हमारी धर्म वैज्ञानिक जो समझ है वो उससे और गहरा होना है। a relational experience with God. एक परमेश्वर के साथ एक संबंध वाला एक बात होनी है। And that's why Elizabeth was able to respond totally different than Zechariah. इसीलिए इलीशिबा ने बिल्कुल अलग से प्रत्युत्तर दिया जो जकरिया ने नहीं दिया। Zechariah says, "Give me a sign, Lord." जकरिया ने बोला कि परमेश्वर से मुझे चिन्ह चाहिए है। Elizabeth says, इलीशिबा ने बोला, "No, no, no, no. This is God doing it." मैं जानती हूँ ये परमेश्वर की ओर से है। Hallelujah. Hallelujah. When God comes and speaks to you about the new season, the new direction, the new steps that God is leading in your life, जब परमेश्वर आपसे आकर बात करता है उन नई दिशाओं के बारे में, उस नए काल या नए समय के बारे में आपके जीवन do में, not doubt the work of God. शक ना करें परमेश्वर के कार्यों पर। Don't put too much logic and intellect into the plan and purposes of God. परमेश्वर की जो योजनाएं है और उद्देश्य है उसमें अपना दिमाग ना डालें। We need to come to God with childlike faith हमको परमेश्वर के सामने एक बच्चे के समान विश्वास के साथ आना and say, है "Yes, Lord, और परमेश्वर से बोलना है, हाँ do परमेश्वर it in me. मेरे लिए वो कर दे। This is your doing. मैं जानता हूँ ये आपका कार्य This है, is your work. ये आपका कार्य है I surrender myself और to मैं अपने you." आप को तेरे सामने समर्पित करता हूँ। And then we come to the story of Mary in this gospel. और फिर हम इसी सुसमाचार में मरियम की कहानी की ओर आते What's हैं। interesting is that Luke tells us more about Joseph here than Mary. और हम यहाँ ये देखते हैं कि हम यूसुफ के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं इसके बनिस्बत कि हम मरियम के बारे में पढ़ें। We know that Mary was not a very popular Miss Universe at that time. हम जानते हैं कि जो मरियम थी वो बहुत मशहूर कोई मिस यूनिवर्स उस समय की नहीं थी। She was an ordinary young वो girl. एक साधारण सी लड़की थी। She was not the most popular person in वो town. बहुत मशहूर एक लड़की नहीं थी उस शहर में। But God chose to work through somebody who was insignificant in the eyes of the public. लेकिन लोगों की दृष्टि में जो बहुत ही असामान्य था परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना चाहता है। Gabriel goes far away from the temple. जब्राइल जो था वो बहुत ही अलग जाता है एक तंबू के पास। And where does the angel go? और फिर कहाँ जाता है वो स्वर्गदूत? Goes to Galilee. और गलील की ओर जाता And है। if you know where Galilee is located, अगर आप ये जानते हैं कि गलील कहाँ पे स्थिर है, it is a very insignificant and unclean town in the city. वो बहुत ही एक अनजानी सी या बहुत ही एक साफ अच्छी जगह सी नहीं है। That means this girl was living in the not the most popular location of the city where all the rich and the wealthy people lives. इसका मतलब ये लड़की बहुत ही एक सामान्य जगह से आती थी जो बड़ी साधारण सी थी, एक बड़े शहर से नहीं आती थी। So God, the angel, if you want to compare it to our Tri-City, and the angel did not go to sector 8 and sector 9. तो अगर हम अपने ट्राई सिटी को देखें तो ये सोच लीजिए कि जो ये स्वर्गदूत था वो सेक्टर 8 या सेक्टर 9 में नहीं गया था। But the angel went to Burail. लेकिन जो ये एंजल था, स्वर्गदूत था, वो बुरेल में गया। Hello. That's what we see here. यही तो हम यहाँ पढ़ते An हैं। insignificant place, बिल्कुल असामान्य सी जगह despised by जो everybody, सब लोगों ने तिरस्कृत की हुई थी, seen as unclean by all. जो सब लोगों ने सोची गंदी जगह But है। the angel went there to greet this teenage girl. लेकिन इस जवान लड़की को वहीं पे मुलाकात अभिनंदन करने के लिए And स्वर्गदूत God जाता है। gives her a shocking और revelation. परमेश्वर और स्वर्गदूत उसको एक बड़ा ही चौंकाने वाला एक दर्शन देता है। If you look at verse 12 and अगर- verse 13, अगर हम 12वें और 13वें पद को देखें तो sorry, my apologies. If you look at verse 20, verse 39, no, 28 so sorry, verse 30, where the angel's appearance to Mary, 28 verse 28. स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, The angel went to her and said,
स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you. आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। God is saying to Mary, you are highly favored of the Lord. स्वर्गदूत जो है मरियम से कहता है, तू जो बहुत अनुग्रह पाई हुई है। Look at Elizabeth and Zechariah. वहां देखिए एलीशिबा और जकरिया को, They were considered righteous by the वो Lord. परमेश्वर के द्वारा धर्मी जाने गए थे। God appears to them. परमेश्वर उनके सामने प्रकट होता है। Here Mary was favored of God. और यहाँ मरियम जो है वो परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह पाई हुई है। You want the favor of God in your life? क्या परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में You चाहते want हैं? God encounters in your life? क्या परमेश्वर की मुलाकात अपने जीवन में चाहते हैं? Let us get right with God. आइए अपने आप को परमेश्वर के साथ ठीक कर Let's लें। live righteous life. आइए धार्मिकता से अपना जीवन Let's बिताएं। live a life that is pleasing to God. आइए अपने जीवन को ऐसे बिताएं जो परमेश्वर को भाता है। And God encounters are for sure. और फिर उसके बाद परमेश्वर की मुलाकात हमारे साथ पक्की है। She was a young girl. वो एक जवान लड़की थी, कुंवारी थी। Some scholars say that she was maybe between the age of 12 or 13. कुछ धर्म वैज्ञानिक लोग ऐसे कहते हैं कि शायद वो 12 या 13 साल की उम्र की थी। Hallelujah. Amen. He might have said, उसने ऐसा शायद बोला होगा, Mary, मरियम, you have the seed of revolution inside your stomach. तेरे पास जो तेरे पेट में जो बीज है वो एक क्रांतिकारी कार्य करने वाला एक The बीज है। seed that is going to change the destiny of the universe. एक ऐसा एक बीज है जो पूरी दुनिया के दिशा को बदल देगा। Hallelujah. Amen. Verse 29. 29वां पद, Mary was greatly troubled at his words वे उस वचन को सुनकर घबरा गई and wondered what kind of greetings this might be. और ये सोचकर विचार करने लगी, ये कैसा अभिवादन है। Obviously, she was surprised by this God ये intervention. तो बात सच्चे है कि वो इस ऐसी बात को, ऐसी मुलाकात को सुनकर And थोड़ी the angel said भौचक्की to हो her, गई। do not be afraid. और फिर स्वर्गदूत ने बोला, तू भयभीत मत हो। Mary, you have found favor with God. मरियम, तूने परमेश्वर से अनुग्रह को पाया This है। morning, I want to tell you that you have found the favor of God. आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने परमेश्वर का अनुग्रह पाया है। Walk in the favor of God. परमेश्वर के अनुग्रह में चले, Walk in the blessings of God. परमेश्वर की आशीषों में चले। Do not embrace what the devil whispers in your ears. उन बातों को स्वीकार न कर लें जो शैतान आपके कान में डालता The है। devil whispers in your ears that you are not good enough. शैतान आपके कान में आकर कहता है आप अच्छे नहीं हैं। The devil whispers in your ear that you are cursed. और शैतान आपके कान में आकर कहता है आप श्रापित हैं। The devil whispers in your ear that you amount to nothing. और शैतान आपके कान में आकर कहता है आप जो भी करते हैं वो कुछ भी नहीं है। But God says to you, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है, do not be afraid. भयभीत मत हो, You have found favor with God. तूने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया है। God says you will conceive and give birth to a और son. तू जो है गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म And you are देगी to call him और तू Jesus. उसका नाम यीशु रखना। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Amen. And he will reign over Jacob's descendants forever. और वो याकूब के घराने के ऊपर हमेशा के लिए राज्य करेगा And his kingdom will never end. और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। Just like Zechariah and Elizabeth. जैसे ही जकरिया और एलीशिबा के साथ था, Mary had a problem. मरियम के साथ भी एक समस्या थी। How is this possible? ये कैसे संभव होगा? I have never had anything to do with any man. मेरे साथ कभी भी मेरा कोई एक पुरुष के साथ कुछ संबंध नहीं था। Yes, I'm betrothed, I'm engaged to be married, हाँ, मेरी जो है मंगनी हो चुकी है एक पुरुष के but I साथ, never had any relationship with any man. लेकिन मेरा कोई पुरुष के साथ संबंध नहीं था। How am I going to conceive a child? मैं कैसे एक बच्चे को, मैं कैसे गर्भवती होंगी? How can this be? कैसे ये मेरे साथ हो सकता है? Hallelujah. Righteous people have problems. धार्मिक लोगों के साथ समस्याएं हैं। Hallelujah. Those who have found favor with God can have challenges. जिन्होंने परमेश्वर से अनुग्रह पाया है उनके साथ चुनौतियां हो सकती हैं।
And you might be asking today, और आज आप अपने आप से पूछ रहे होंगे how can this be? ये कैसे हो सकता है? How many of you have asked that question? आप में से कितने लोगों ने ऐसा प्रश्न पूछा है? How can this be possible, God? ये कैसे संभव हो सकता है? How are you परमेश्वर? going to turn this situation? कि आप ये परिस्थिति को कैसे पलट Look सकते at हैं? what I'm experiencing. देखो मेरे को मैं कैसे अनुभव कर Or, रहा or हूँ what did I do, Lord, to deserve this? और मैंने क्या किया था जो मैं ऐसे होकर गुजर रहा हूँ? Why is this happening to me? क्यों हो रहा है ये मेरे साथ? I don't know your question, मैं नहीं जानता आपका प्रश्न क्या है आज but सुबह, your question is good. लेकिन आपका प्रश्न अच्छा है। But don't ask your husband or your wife the question. लेकिन इस प्रश्न को अपने पति या पत्नी से ना पूछें, Don't ask the pastor your question. अपने प्रश्नों को अपने पासवान से ना Come पूछें to God and ask Him. और परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से पूछें। There is nothing wrong when bringing questions to God. ये गलत नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने प्रश्नों को लेकर In आए। fact, the Bible says, you come and reason with me. और वचन में लिखा है कि तुम मुझसे आओ, मुझसे बात करो। So whatever you have, the problems, the burdens, the challenges, take it to the Lord. चाहे आपकी कोई भी चुनौती है, कोई भी बोझ है, कोई भी बात है, वो परमेश्वर के पास You लेकर will जाएं। receive the answer from आप God. उसका उत्तर परमेश्वर से जरूर पाएंगे। And so then what happened? और फिर देखिए वहां क्या होता The है। angel answered, और फिर स्वर्गदूत ने the उत्तर Holy दिया, Spirit will come upon you. पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी। This is the most important first step in turning impossible situations into possible ये situations. सबसे पहला कदम है जब असंभव बातें हमारे जीवन में संभव होने लगती You हैं। need the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा की You आवश्यकता need है। the power of the Holy आपको Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता है। Not by might, सामर्थ से नहीं, शक्ति से नहीं, not by our wisdom, हमारी बुद्धि से नहीं, not by our intellect, हमारे ज्ञान से नहीं, not with our money, हमारे पैसों से नहीं, but by the power of God. लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। Hallelujah. Hallelujah. This mountain shall be moved. ये पहाड़ टल जाएगा। This impossibility can turn into ये possibility. असंभव बात संभव में पलट जाएगी। The Holy Spirit will come upon you. पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। How many of you have invited the Holy Spirit into your life? आप में से कितने लोगों ने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में उतरवाया है या स्वागत किया है? Not an experience that you had once upon a time, ऐसा वाला अनुभव नहीं जो कभी आपके जीवन but में हुआ था every आपको। day, लेकिन प्रतिदिन every day, प्रतिदिन come before God and say, Lord, I need a fresh anointing of the Holy परमेश्वर Spirit. के पास आए और परमेश्वर से बोले मुझे आपका एक ताजा अभिषेक Lord, I चाहिए need है। a fresh touch from you. परमेश्वर मुझे आपसे एक ताजा स्पर्श चाहिए I'm है। not satisfied with what I experienced 10 years मैं ago. 10 साल पहले जो अनुभव किया था उससे संतुष्ट नहीं हूँ। There are many Christians who are living in the good old days. कई ऐसे मसीह हैं जो हर चीज जो अच्छी थी उसमें जी रहे Oh, हैं। I remember that experience when I had. और मैं बहुत याद करता हूँ उस अनुभव को जो मेरे साथ हुआ था। That's wonderful. वो बहुत अच्छी बात है। But God has bigger, better, greater things in store for लेकिन you. परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ा, महान और उत्तम आशीषें हैं जो उसने बचा के How रखी many है। of you desire more of the Holy Spirit? आप में से कितने लोग और चाह रखते हैं पवित्र आत्मा के Let me लिए? tell you today, you have not even touched the surface of the depth and the width and the power that is available to you in the Holy मैं Spirit. आपको बताना चाहता हूँ अभी तक आपने जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की गहराई और चौड़ाई है उसको छुआ तक भी नहीं है। Hallelujah. 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 The Holy Spirit will come upon you. पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा And the power of the Most High will overshadow you. और परम प्रधान की सामर्थ तेरे ऊपर छाया करेगी। So the Holy One to be born will be called the Son of God. इसलिए परमेश्वर का पुत्र जो पैदा होगा वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो होगा वो पवित्र Hallelujah. पुत्र कहलाएगा। Mary received the Holy Spirit into her heart. मरियम ने पवित्र आत्मा को अपने हृदय में उतार लिया। I'm sure she knelt before the angels. मैं विश्वास करता हूँ कि वो स्वर्गदूत के सामने झुक गई She raised her hands to the और Lord. उसने अपने हाथों को उठा लिया। And look at verse 38. और फिर देखिए 38वें पद में क्या लिखा है, I am the Lord's servant. और मैं जो हूँ वो प्रभु की दासी हूँ। Say it with your mouth. I am the Lord's servant. अपने मुंह से बोलिए मैं परमेश्वर का दास और दासी How many हूँ। of you believe that you are the Lord's servant आप में से today? कितनों को लगता है परमेश्वर के दास और दासी You हैं? are chosen by God. परमेश्वर ने आपको चुना हुआ You है। are the servant of the Most High आप God. महान इस परमेश्वर के दास
दास और दासी You had the हैं, visitation of God. परमेश्वर की मुलाकात आपके जीवन में God हुई has है, come to your village, your town. परमेश्वर आपके गांव और आपके शहर में He has उतर आया called है, you and He has chosen you. उसने आपको बुलाया है और आपको चुना है, And He has separated you और उसने आपको अलग किया है to be His, ताकि आप उसके हो जाएं, so that He can birth the impossible through you. ताकि वो उन असंभव चीजों को आपके अंदर से उसकी उत्पत्ति करे। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And Mary said, और फिर मरियम ने कहा, may your word be to me to be fulfilled according to your word. तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ये असंभव हो I जाए। believe in the King James version it says, let it be to me according to your word. वो मेरे साथ वैसे ही हो जाए जैसे तेरा वचन कहता How है। many of you will say to the Lord, आप में से कितने लोग परमेश्वर से ऐसा कहेंगे? Lord, whatever you want me to be, that's what I want to be. प्रभु जो कुछ भी आप चाहते हैं मैं चाहता हूँ मैं वही हो जाऊं। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mary embraced the divine plan and the purpose of God मरियम ने परमेश्वर के उस दैवीय योजना को स्वीकार कर लिया and became a partner in God's redemptive plan on earth. और परमेश्वर के उस छुटकारे के कार्य को जो संसार में होना था उसकी भागीदारी बन गई। Hallelujah. That's what God wants us to be. परमेश्वर यही तो चाहता है हमसे। God wants us to be co-laborers with Him in His work on the earth. परमेश्वर चाहता है उसके कार्य जो इस संसार में हो रहा है उसके साथ हम भागीदारी हो जाएं। Many of us are still sitting barren because we are not filled with the Holy Spirit to produce the babies, the children, the souls that God wants you to save. हम में से कई लोग बांझ बैठे हैं क्योंकि हमने परमेश्वर के कार्य को स्वीकार नहीं किया है ताकि हम उन बच्चों को उत्पन्न कर सके जो परमेश्वर हमसे चाहता है। The time has come समय आ गया है that God birth souls, God birth the children that are lost and dying and be saved and brought into the kingdom of God through your कि life. परमेश्वर आपके जीवनों के द्वारा उन प्राणों को या उन जीवनों को उत्पत्ति दे जिन्होंने आज तक परमेश्वर को नहीं जाना है। Hallelujah. God's redemptive plan today on earth is accomplished through you and through me. परमेश्वर के जो छुटकारे की योजना है वो आपके और मेरे द्वारा पूरा होगा। Don't sit barren. इसलिए बांझ ना बैठें। Don't be like Elizabeth, old age and still barren. इलिशिबा के समान ना बने कि बुजुर्ग हो गए हैं और ऐसे बैठे हैं बांझ। But be like Mary, लेकिन मरियम के समान 12 years old, 12 साल की उम्र, 13 years old, 13 साल की उम्र, partnering with God in His work. परमेश्वर के कार्य में जुड़ गई वो। Hallelujah. Amen. And the Gospel of Luke, Dr. Luke takes a step further and talks about Mary the Virgin becoming pregnant with God's Son. और फिर उसके बाद लूका जो है अपने सुसमाचार में आगे बढ़ता है और हमें बताता है मरियम कैसे एक बच्चे की माँ बन जाती है। And for Luke, this is very, very important because he was a medical doctor. और लूका के लिए ये बहुत ही आसान सरल बात थी क्योंकि वो एक मेडिकल चिकित्सक था। Because of that, he highlights the fact that there is nothing impossible to God. इसीलिए उसने इस चीज को यहाँ पे बहुत ही केंद्रित किया कि परमेश्वर के लिए ये चीज असंभव नहीं है। God gives favor to those who cannot claim favor or worth for herself. परमेश्वर उनको अनुग्रह देता है जो अपने लिए मान नहीं सकते इस बात को कि वो उनको अनुग्रह पा सकते हैं। God draws such people into His presence. परमेश्वर ऐसे लोगों को अपनी उपस्थिति में खींच लेता है। And God raises them up to fulfill His purpose. परमेश्वर उन लोगों को उठाता है कि परमेश्वर की उन मकसदों को वो पूरा करें। If you look at verse 36 and verse 38, और जब हम 37वें और 38वें पद को देखते हैं you see the contrast. और आप यहाँ देखिए कि एक विरोधाभास है। Look at verse 36. 36वें पद को देखते हैं। Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. और देख तेरी कुटुंबी इलिशिबा भी इस बुढ़ापे में एक पुत्र को उत्पन्न करेगी। And she who was said to be unable to conceive in her 6th month. और जो बांझ कहलाती थी वो अपने 6वें महीने में है। For no word from God will ever fail. क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है I am the Lord's servant. वो प्रभाव रहित नहीं होता। मैं Mary यहोवा की says, दासी हूँ। मरियम कहती May है your word to be according to your word. मुझे तेरे वचन के अनुसार हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। You see the contrast between these two situations. आप देख रहे हैं यहाँ पे दो परिस्थितियों के बीच में अलगाव। The whole Gospel of Luke
पूरा जो सुसमाचार है लूका का is wrapped up in God's intervention in these impossible situations. इस असंभव परिस्थिति के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाने में So you see the two situations here. फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे दो परिस्थितियां हैं, Old couple, एक बुजुर्ग दंपति, young couple, एक जवान दंपति, both lived righteous और lives, दोनों लोगों ने एक धार्मिकता का but जीवन बिताया both है, faced with an impossible लेकिन situation. दोनों ने जो है असंभव का सामना There are किया। few things that I have gleaned from this story. इस कहानी से कुछ चीजें हैं जो मैंने इकट्ठी करी हैं For us to birth the impossible, हमारे लिए कि हम एक असंभव चीज की उत्पत्ति few करें। things has to line up. कुछ चीजें हैं जो ठीक होनी है। And the first one is this. सबसे पहली चीज ये है, You have to be driven by a divine purpose. परमेश्वर का जो एक दैवीय मिशन, जो एक उद्देश्य है, उसको हमें पकड़ लेना है कसम। The impossible situation in your life has to align with the plan and the purpose of God. जो असंभव बातें हैं वो परमेश्वर की योजनाओं के साथ जुड़ जानी है। That which is not of God will not come into fruition. जो चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है वो चीजें नहीं पूरी होंगी। So maybe we need to evaluate whatever we are desiring or whatever we are attempting to do. Is it in sync with what God is asking me to do? इसलिए आप जो करना चाहते हैं या जिस चीज की इच्छा रखते हैं उस चीज के बारे में सोचिए कि परमेश्वर भी यही चाहता है। Hallelujah. If you look at Elizabeth अगर आप इलिशिबा को देखें, and you look at Mary, अगर आप मरियम को देखें, this was God's redemptive plan. वो परमेश्वर के छुटकारे की योजना थी। Elizabeth was to conceive John the Baptist, इलिशिबा ने जो अपने अंदर जो जिस चीज को पाया वो यूहन्ना बपतिस्मा देने who वाला was था। to prepare the way for the Lord Jesus' coming. वो यहोवा के आने के आगमन के लिए रास्ता तैयार कर रहा था। And then Mary was to bring the deliverer, the savior to the और world. मरियम जो थी वो इस संसार में उद्धारकर्ता को उत्पन्न कर So रही थी। both of them had an assignment from God. इसलिए दोनों को परमेश्वर यहोवा से कार्य मिला था। So how do you want to turn your impossibility to God, तो फिर- to possibility? तो आप कैसे अपनी असंभव बातों को संभव बना सकते हैं? Make sure that it is within the plan of God. आप इस चीज को पक्का करें कि वो परमेश्वर की योजना में है। Amen. When you are gripped by a divine mission, और जब आपके पास एक दैवीय मिशन है और आपने उसको जकड़ के पकड़ लिया है, impossible become possible. तब असंभव संभव बन जाता है। Hallelujah. That's the first lesson. ये सबसे पहले एक Number बात two. है। दूसरी बात, You need to believe that there is nothing impossible with God. और आपको ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर के साथ असंभव कुछ भी नहीं है। The Bible says all things are possible for those who believe. बाइबल ऐसे कहती है जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सब चीजें संभव हैं। The angel said to Mary, इसलिए स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, if you doubt my word, अगर तुझे मेरे शब्दों पे शक है, take a look at Elizabeth. इलिशिबा को देख जाकर। She is expecting her first वो child. अपने पहले बच्चे को अपेक्षा कर रही है। She is too old to वो conceive. बहुत बुजुर्ग है, बूढ़ी है। If God can do that for her, अगर परमेश्वर उसके लिए कर सकता है, don't you think God can do this in your life? क्या तुम सोचती नहीं हो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में भी कर सकता है? Hallelujah. Look around. देखिए अपने चारों ओर, Look around. देखिए अपने चारों Even in ओर, our own church, हमारे ही कलीसिया you में will see how God is working in the lives of the people. आप देखेंगे परमेश्वर कैसे लोगों के जीवनों में कार्य कर Those रहा who है। are walking in the plan and the purpose of जो God, परमेश्वर की योजनाओं में होकर चल रहे हैं, God is turning the impossible things into possibilities. परमेश्वर उनके लिए असंभव चीजों को संभव कर रहा है। You can stretch your faith, you can expand your faith, seeing what God is doing in other people's आप lives. अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं ये देखकर उन लोगों के जीवन में जिनके जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है। Not to feel jealous, जलन ना रखें, not to feel bitter. उनके प्रति कड़वाहट ना Oh रखें। Lord, you're doing it for them. ओ परमेश्वर आप उनके लिए ऐसा कर रहे हैं, You're not doing it for आप me. मेरे लिए ऐसा नहीं कर रहे Don't हैं। become like that. ऐसा ना बन जाए। You find out the secret of the faith that are behind believing for those आप impossible ऐसे things. रहस्य को जानने की कोशिश करें कि उनके विश्वास में ऐसी क्या बात है जिसमें वो बढ़ोतरी पा रहे हैं। Many people want to become Billy Graham, कई लोग जो हैं वो डॉक्टर बिली ग्रैहम जैसा बनना but चाहते they are हैं, not prepared to go through the discipline, the perseverance, the hard work that has gone behind becoming who he became. लेकिन कई लोग उस धैर्य से उस संघर्ष से होकर गुजरना नहीं चाहते हैं Hallelujah. जिससे वो होकर गुजरे Paul थे। the apostle says,
पौलुस ऐसा कहता है, I can do all things मैं पर मसीह में होकर सब कुछ through Christ who strengthens कर me. सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। Do you believe that everything is possible with God? क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के साथ सब संभव है? Amen? Do you believe that God can use you? क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता Do है? you believe that God's name can be glorified through your क्या आप life? विश्वास करते हैं आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिल For सकती है? nothing is impossible with God. क्योंकि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। The third lesson that I learned from this story तीसरी बात जो मैंने इस कहानी इस पाठ से सीखी is that Mary did not let go of the vision. कि मरियम ने उस दर्शन को जाने नहीं दिया। She joined force with her husband Joseph, उसने यूसुफ अपने पति or के would-be साथ husband Joseph, और जो बनने वाला जो उसका पति था उसके साथ मिलकर and they did everything possible to protect the vision that God has given और them. उन्होंने वो सब कुछ संभवता किया ताकि उस परमेश्वर के दर्शन को पूरा कर सके। They did not compromise. उन्होंने समझौता नहीं किया। They did not run away from the vision. वो उस दर्शन से भागे नहीं। If you want God to birth the impossible into possibilities, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके के लिए असंभव को की उत्पत्ति करे, don't quit. आप हार ना माने, Don't quit. हार ना माने, Don't give up. हार ना मान जाएं, पीछे Stay ना हो on जाएं। course. अपने उस कार्य में लगे रहें, Stay faithful. विश्वास योग्य बने रहें, Continue to do the good work. अच्छा कार्य करते चले जाएं। For Zechariah and Elizabeth, it took them many years. जकरिया और इलीशिबा के लिए बहुत लंबा साल लगा, But the Bible says they remained righteous all throughout their life. लेकिन बाइबल कहती है वो अपने जीवन के पूरे समय विश्वास योग्य बने My रहे। dear friends, God in His due time will lift you up. मेरे मित्रों, परमेश्वर अपने नियुक्त समय में आपको ऊंचा उठाएगा। Don't try to sit without bending your leg. अपने पैरों को ऐसे ही मोड़ कर बैठे ना रहें। Many people are trying to sit without bending their legs. कई ऐसे लोग हैं जो बिना पैर मोड़े बैठना चाहते हैं। Allow yourself time to go through the process of sitting down. अपने आप को समय दें कि आप नीचे बैठने का भी एक प्रक्रिया करें। Hallelujah. God will give you the breakthrough. परमेश्वर आपको तोड़ देगा, आशीष देगा। The fourth thing that I wanted to share with you चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ is that you must associate with like-minded people. कि आप अपनी बुद्धि को उनके साथ जोड़ें जो सामान्य बुद्धि रखते हैं। Surround yourself with men and women of faith. अपने आप को उनके साथ जोड़कर रखें जो वैसी ही विश्वास रखते हैं। Hallelujah. It is very important that you find friends and people who have faith in God to believe the impossible ये things. बहुत जरूरी है कि आप उन मित्रों के साथ दोस्ती रखें जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। If you look at chapter 1 verse 56, अगर आप उसका 65वां पद देखें पहले अध्याय का, if you look at chapter 1 verse 56, पहला अध्याय उसका 65वां पद, Mary stayed with Elizabeth for about 3 months. वहां लिखा है मरियम लगभग 3 महीने तक उसके साथ उसके पास से ना लौटी। What was happening there? वहां पर क्या हो रहा था? Why did Mary choose to stay with Elizabeth? मरियम क्यों एलिशिबा के साथ ठहरी रही? Because Mary saw something in Elizabeth क्योंकि मरियम ने एलिशिबा के अंदर कुछ देखा था। that she believed that there will be a transfer, there will be an encouragement, there will be a motivation, there will be something that she is going to get from her. कि मरियम ये देखना चाहती थी कि वो उस एलिशिबा से कुछ अनुग्रह पाएगी या कुछ उत्साह पाएगी। Hallelujah. Who are your friends? आपके मित्र कौन है? Who is influencing you? आपको कौन प्रभावित करते Are they हैं? pulling you down क्या वो आपको नीचे खींच रहे हैं or are they pushing you up? और या वो आपको ऊंचा उठा रहे हैं? Think about that. सोचिए उस बारे में। Maybe you need to delete some of your negative influences. आप में से कुछ लोगों को नकारात्मक जो प्रभाव आपके ऊपर डाल रहे हैं उन लोगों को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। Really see if there are people that are encouraging you in your ये journey. देखना है कि आपके जीवन की यात्रा में क्या वो वैसे लोग हैं जो आपको उत्साहित कर रहे हैं। Associate yourself with like-minded people. ओ आपके समान दिमाग रखने वाले लोगों के साथ जुड़े रहें। Number 5, पांचवी बात, if you look at Mary and Joseph, अगर आप मरियम और यूसुफ को if you देखें, look at Zechariah and Elizabeth, अगर आप जकरिया और इलिशिबा को देखें, they both had to pay the price. उन दोनों को एक कीमत चुकानी They पड़ी were willing to pay the price. और वो कीमत चुकाने के लिए तैयार थे।
Remember, for the life of a Jewish girl, सोचिए उस बारे में कि एक यहूदी लड़की के लिए the day of marriage is the most dreamt day of her life. एक लड़की के उस जीवन के लिए शादी का दिन बहुत ही ज्यादा वो उसके लिए सपने जोड़ती है। That's the day a girl will look forward to. एक लड़की उस दिन का इंतजार करती है। But can you imagine for Mary? लेकिन आप देखिए यहाँ मरियम के लिए All of those plans, सारी वो जो योजनाएं हैं all of दिमाग those में, preparations for the सारी big वो- day, सारे उस बड़े दिन के लिए जो तैयारियां हैं it's now gone वो सब चला गया because she's already going to be conceiving a child. क्योंकि वो अपने अंदर पहले से एक बच्चे को पा चुकी है। The rumor and the news have spread throughout the Judea सारे यहूदा में ये खबर फैल गई that she is pregnant. कि वो गर्भवती है And so now that glamorous wedding is not going to be happening. और अब वो जो चकाचौंध वाली शादी है वो नहीं होनी है अब, She had to pay the price. क्योंकि उसको कीमत चुकानी पड़ी। Hallelujah. Sometimes we have to pay the price for allowing God to birth his purposes in our lives. कभी कभी हमें परमेश्वर की योजनाओं को अपने अंदर से उत्पन्न करने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। But God will never allow circumstances and situations in ways that will humiliate us or that will disgrace us. लेकिन परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को हमारे जीवन में आने नहीं देगा कि जहां हम शर्मिंदा हो जाएं या बहुत ही ज्यादा तुच्छ जाने जाएं। Today, आज as we prepare for the weeks ahead, कि हम आने वाले हफ्तों के लिए जैसे तैयारियां करते हैं, decorating our house, अपने घरों को तैयार करते putting up हैं, the trees, क्रिसमस ट्री लगाते हैं, giving gifts, दूसरे लोगों को उपहार देते हैं, singing carol हम songs. कैरल्स के गाने गाते हैं। I don't know what you are trying to do. मुझे नहीं पता आप क्या करने जा रहे हैं। Ask God this season. परमेश्वर से समय के लिए मांगे। God, what is it that you want from me? परमेश्वर ऐसा वो क्या है जो आप मेरे जीवन से चाहते हैं? What is the impossible thing that you want to birth through me? क्या है वो ऐसी असंभव बात जो आप मेरे जीवन से उत्पत्ति जिसको उत्पन्न करना चाहते हैं? What is the impossible situation that is now stopping you from moving forward? क्या है वो असंभव बात जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? God wants all of us परमेश्वर हम सबों को चाहता है to come to him and say, yes, Lord, कि हम उसके पास आए और बोले हाँ प्रभु let it be. ये हो जाए, Let it be ये हो जाए to me मेरे लिए according to your word. तेरे वचन के अनुसार। How many of you will say yes to the Lord आप में से कितने लोग परमेश्वर को हाँ बोले? during this Christmas season? इस क्रिसमस के समय में Let's experience the miracles of God.